So I will take the attendance. Vishal, hello. शिवम विशाल आहे का? No, sir. He's Absent. So if somebody is asking you, just tell me, huh? Okay. I'll just take the names. If they are absent, just let me know. Mistri. Hello. Shivam Mistri. Absent. yes, sir. Mukri. Present, sir. Okay. Naik. Present, sir. Ashish Panchal. Present, sir. Nirav Panchal. Absent. Yes, Rugved. sir. Rugved. Sir is Absent. waiting. Sir is waiting in the lobby. I think Vishal has also joined. I think. Acha, Rugved, have you joined? No, Dhruv. sir. Yeah, Vishal. Yes, sir. Sir, Gurja joined. Rugved. Dhruva. Present, sir. Dhruva. Present, sir. Present, sir. Kasim. Omkar. Hello, sir. Present, sir. Omkar. Present, sir. Present. Sonia. Himanshu. Present, sir. Adil. Adil Sheikh. Sir, Sonia said present in chat box. Dipen. Present, sir. Akash Shetty. Present, sir. Tembulkar. Present, sir. Manthan. Present, sir. And Manish. Absent, sir. Why Manish is absent? Any idea? Sir, he's out of town. सर तो Since चिपळूणला when? गेलाय. अच्छा. सर त्याच्या का? नानाची हेल्थ बरी नाहीये. अच्छा अच्छा. नाही त्याची ती टेस्ट घ्यायची होती. So I'm trying to contact him. So Shivam, just ask him when he will be ready. Okay, And sir. tell Sir, me. he said he's staying there for 10-15 days. अच्छा. So but he can give online test, no, from there. Yes, I'll tell him. Sorry. Sir, I'll tell network is him. not stable there. So he was Okay, trying to connect also. So you ask him and let me know. Okay. Yeah. Okay, sir. Okay. So group number 10. Or let Ashish Panchal present first. I have gone through his, but once again, Ashish, you please present your jig as well as picture. हाँ बोलो. क्या हो गया? Sir, wait a second. I'm opening. हाँ, wait a second. Sir, is my screen visible? Yes. Sir, my trim jig. Yeah. This is a component. This is component. Speak This is louder. the jig without the
the clamping in a part. Okay, This includes good. the clamping in the part. This is the exploded view. Yeah. On the front view, left view और top view है. वही नीचे. 3D model दिखाओ जिग का. Now in this 3D model assemble with the Solid of workpiece. से बोले हो? हाँ. ये रहा top right. हाँ. So इसमें now you have to show the drill at one place. Sir, drill. हाँ drill just एक ड्रिल ऐसा लाके रख दो होल के ऊपर बस. सर तो ड्रिल मतलब बनाना पड़ेगा कि वो स्टार्टेड मतलब कुछ भी बना देंगे सर्कुलर चलेगा क्या? प्रॉपर नहीं, इट शुड लुक लाइक अ ड्रिल ना. हाँ. वो मिल जाएगा आपको सैंडविच का कैटलॉग में मिल जाएगा ड्रिल. इमेज भी मिल जाएगा. हेलो. सिर्फ इमेज ही लगाना है ऊपर. हाँ वो ड्रिल का एक इमेज वहाँ पे ऊपर लगाने का सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट वहाँ पे ड्रिलिंग हो रहा है करके बस. अच्छा चलेगा. इमेज वहाँ पे कॉपी पेस्ट करो. सेकंड थिंग अभी इसमें जाओ आपका बिल ऑफ मटेरियल में. ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन केयरफुली. बिल ऑफ मटेरियल में आई वांट 6 कॉलम्स ऑल टुगेदर. आइटम नंबर आपने वो करेक्ट नहीं किया. पार्ट नंबर है वो. आइटम डिस्क्रिप्शन होना है वहाँ पे. हेलो. हाँ सर पार्ट नेम लिखता हूँ. पार्ट डिस्क्रिप्शन और आइटम डिस्क्रिप्शन. देन थर्ड कॉलम विल बी क्वांटिटी. थर्ड should be quantity. Okay. फोर्थ कॉलम विल बी मटेरियल. Okay. फिफ्थ कॉलम विल बी साइज. and sixth column is remarks. The purpose of bill of material is looking at this, the purchase people can order the material. That is why bill of material is prepared. Bill of material is not useful for a designer. It is useful for the purchase people. So remarks what do you have to write? हाँ पहले ये समझ में आया साइज वगैरह से. हाँ साइज देना. अभी रिमार्क्स में देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड टू हार्डन. Okay. अब जो इनसाइड बुश है ना उसको लिखने का जिग बुश लिखने का. ओके. और रिमार्क में लिखने का हार्डन EN36 है ना. तो रिमार्क में लिखने का हार्डन टू 58 to 60 RC. हार्डन टू 58-60 RC. अभी इनसाइड ठीक है. अभी देयर इज द बुश आउटसाइड आल्सो ना. वो दिखाओ जरा इनसाइड और आउटसाइड बुश 1 नंबर एंड 3 नंबर. So number and 3 number. हाँ इसमें दिखाओ 3D में. ग्रीन एंड रेड. ग्रीन वाला है वो. बाहर वाला. हाँ वैसा 2 बुश क्यों बनाया है इनसाइड और आउटसाइड बुश. लेट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. सर मैं बताऊं. हाँ बताओ. तो सर सबको डायमीटर समझ 20 का होल मेरे को मारने का है तो लाइक वो 1 वो आई डोंट थिंक बराबर. हाँ तो पहले 12 का मार रहे हैं 12 का होल 12 वाला बुश से और उसके बाद 12 लास्ट कर देंगे 20. बराबर. गुड. ओके सो बिल ऑफ मटेरियल. दूसरे वाला बुश का भी वही हार्डनिंग करना पड़ेगा. तो ये जो बुश. हाँ तो बुश में क्या लिखने का मालूम है. इनसाइड बुश और आउटसाइड बुश ऐसा मत लिखो. जो अंदर का होल कितने का साइज है. अंदर का छोटा वाला होल 12 का है और बड़ा वाला 20 का. हाँ तो बुश फॉर डायमीटर 12 एंड बुश फॉर डायमीटर 20 ऐसा लिखने का. हाँ बिकॉज इनसाइड बुश आउटसाइड बुश डजंट लुक टेक्निकली प्रॉपर. ओके. देन दोनों भी बुश है EN36. इसमें रिमार्क में आएगा हार्डन टू 58-60 RC. देन अभी ये 4 नंबर दिखाइए पार्ट. 4 नंबर तो सर पार्ट है मेरा. हाँ तो वो जो पार्ट है वर्क पीस है. आर यू गोइंग टू ऑर्डर. नो. नो. इट इज नॉट. इज इट अ पार्ट ऑफ जिग. नो. सो इट विल नॉट कम इन द बिल ऑफ मटेरियल. ठीक है. सो यू हैव टू डिलीट. जिसने भी लिखा है सब डिलीट करने का ये पार्ट. ओके सर. और पार्ट नहीं लिखने का वर्क पीस लिखने का या कंपोनेंट ऐसा लिखने का. पहला तो लिखने का नहीं है लेकिन इफ एट ऑल इफ यू आर राइटिंग देन यू हैव टू राइट वर्क पीस. हाँ तो डिलीट दैट पार्ट आइटम नंबर 4
then central forced EN24, हाँ, तो this also hardened to 58 to 60 RC. ओके सर Nut for clamping bolt standard, then clamping bolt, अभी ये जो नट है ना उसका साइज नहीं लिखा है, तो हाउ यू विल ऑर्डर? अच्छा M12 का सर नट ये है जो ना? नट है ना सर एक्चुअली M12 का ही है हाँ बट देन यहाँ पर अगर आप देखोगे 3D में तो सर मैंने ये नट अभी यहाँ नट सिर्फ अंदर का पार्ट ही है नट यहाँ पे मेरा ये जो बाकी का पार्ट है मतलब वो यहाँ से लाइक ओवरहैंग हमने वेल्ड किया है, ऐसे समझ सकते हैं तो उसके लिए वो बताना जरूरी है क्या? नहीं नहीं ठीक है चलेगा, हाँ, लेकिन इफ यू आर ऑर्डरिंग द नट ना, ये विंग नट कर रहा है ना ऑर्डर, तो विंग नट नहीं हाँ विंग ये नट तो हाँ ये इधर का हेक्सागोनल नट ना, सो हाँ यू ये हैव टू वाला गिव द साइज M12 हेक्सागोनल नट करके, हाँ, ओके सर और वो वापस से बोलो सब लोग को समझने दो, वो क्या पार्ट, सर वापस बोलो हाँ पार्ट का बोल रहा था ना, सर पार्ट का कुछ नहीं बोला नहीं जस्ट नाउ यू सेड नो, सर यहाँ पे जो है ना ये बोल्ट ये एक्चुअली हमने मतलब जिग प्लेट से वेल्डिंग ओवर करके समझ समझ के रखा है लेकिन वेल्डिंग के लिए रॉड तो नहीं ऐसे मतलब पूरा सपोर्ट ही ले लिया पूरा ये सेक्शन ये वेल्ड किया है ना, हाँ हाँ वैसे सो समझ सकते हो हाँ नहीं मतलब हाँ व्हाट इज तो योर सर कंसर्न, वो वेल्डिंग दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ऐसा ना? सर एक्चुअली में जब करेंगे तब भी सर जरूरी नहीं है सब रेक्टेंगल सेक्शन बनाना सिर्फ एक रॉड लेके भी वेल्ड तो कर सकते हैं रॉड लेके, रॉड में भी तो वेल्ड कर सकते हो ना ये जो सेक्शन है यहाँ पे हाँ हाँ ये पूरा का पूरा जरूरी तो सिर्फ एक रॉड रहेगा वो भी सफिशिएंट रहेगा ना वो जो मेरा रॉड नट रहेगा उसके ऊपर हाँ इंस्टेड ऑफ दैट फ्लैट, यस सर राउंड रॉड बोलते हैं, हाँ लेकिन फ्लैट इज ऑलवेज बेटर ना, चलेगा सर नहीं मैं ऐसे बोल रहा था हाँ फ्लैट इज ऑलवेज बेटर, ओके देन बिल ऑफ मटेरियल में अभी क्लैंपिंग बोल्ट M12/45, ये ISO 4015 है ना, वो लिखने का जरूरत नहीं, ओनली राइट M12/45 दैट्स ऑल, हाँ, ओके सर देन विंग नट उसका भी साइज M10 का चलेगा M10, और अभी जो फ्लैट है वो उसका वो नहीं आया इसमें, दो सर फ्लैट, वही बोल रहा था सर ये जो नट है ना एक्चुअली ये मैंने बनाते टाइम में नट को नट एज अ पार्ट ही इम्पोर्ट किया मैंने और उसके अंदर ही मैंने पूरा मतलब मटेरियल ऐड कर दिया वो बोल्ट के अंदर नट के अंदर हाँ हाँ समझा मैं, लेकिन जब भी व्हेन यू आर मेकिंग द जिग तो दैट टाइम आपको ये फ्लैट भी तो लगेगा ना, अच्छा इट्स अ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ना, तो वो फ्लैट आपको ऐड करना पड़ेगा, यू विल हैव टू ऐड दैट, हाँ, अभी नीचे रेस्टिंग बटन्स दिख रहा है तो वो किधर है पार्ट सर नंबर? बटन्स नहीं सर वो ऐसे जिग के साथ ही है मतलब टेबल पे मतलब स्टेबिलिटी बराबर है, बटन इट इज लाइक अ सपोर्ट्स ना, यस सर सपोर्ट बोलो या बटन्स बोलो, ओके so that is a separate part, no, separate pieces, no, for it can be हाँ सर वेल्डिंग वो राउंड बटन रहेगा या रेक्टेंगुलर रहेगा, तो वो दिस आल्सो यू ऐड, ओके, ओके सर 4 बटन्स लिखो, रेस्टिंग सपोर्ट बटन्स, हाँ, और MS का, ठीक है, और ये जो फ्लैट है उसका लिखो फ्लैट, हाँ, और उसका भी मटेरियल MS लिखो, ठीक है, सर फ्लैट ही लिखूं सर हाँ फ्लैट लिखो ना, चलेगा सर फ्लैट, सर मिलिंग फिक्सर अभी तक बनाया हाँ नहीं है अभी मिलिंग चालू फिक्सर है कितना किया है वो दिखाओ ना, एक सेकंड सर सर ये इतना हुआ है गुड, तो यहाँ पे बस अभी सेटिंग ब्लॉक लगाना बाकी है वही सेटिंग ब्लॉक लगाने का, उसके भी पूरे मिलिंग कटर भी दिखाने का, फेसिंग कर रहे हो ना आप, ये ऊपर का पार्ट फेसिंग हाँ, तो यू आर यूजिंग फेस मिलिंग कटर, बराबर है, तो हाँ। सेटिंग ब्लॉक के ऊपर यू हैव टू शो द फेस मिलिंग कटर, ठीक है, और इसका विड्थ कितना है? सर ये कंपोनेंट का वेट 51 है तो लाइक कटर 55 का लेंगे हाँ, तो 55 का कटर बराबर ऐसा सेंटर में दिखाने का, एंड इट शुड बी क्लियर दैट इट इज गोइंग टू कवर द एंटायर विड्थ, ओके, सर मतलब वो पूरा पार्ट बनाना पड़ेगा फिर तो हाँ, मतलब वो 55 का जो कटर है ना वो आपका सेटिंग ब्लॉक के ऊपर दिखाने का, और ये जो आपका जो 51 का विड्थ है उसका जो सेंटर लाइन है ना
हाँ उसका सेंटर लाइन और कटर का सेंटर लाइन मैच करने का। सर वो नहीं बोला, मैं सब बोला वो कटर पूरा वापस डिजाइन करना पड़ेगा सर। डिजाइन नहीं, वो भी इमेज मिल जाएगा फेस एंड मिलिंग कटर का। चलेगा सर। फेस एंड मिलिंग कटर का देखो, गूगल करेंगे ना फेस एंड मिलिंग कटर, उसका इमेज मिल जाएगा, वो इमेज को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे चिपकाने का। चलेगा सर। देखो ट्राई करो, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे को बोलो, सम स्टूडेंट्स दे हैव डन इट, so for you I don't think there should be any problem. Yeah, Should I stop presenting? yeah, please stop. Group number 10, who is presenting? विशाल है, मुकरी है, कौन है? Who wants to present? Group number 10. सर हाँ, तर सेटिंग बॉक्स बनवायचा आहे आणि इथे जिगचं दाखवत आहे का? जिग जिग पिक्चर अगोदर पिक्चर दाखव ना, फर्स्ट शो मी जिग. ठीक सर. एवढं काही क्लिअरली दिसत नाहीये, बट स्टील ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट. सर इथं नाही सी अगोदर ब्लॉक लावला. जिगचं 3D मॉडेल लागू अगोदर, जिगचं 3D मॉडेल, बिल ऑफ मटेरियल. 3D मॉडेल हे नाही केलंय हा 3D मॉडेल पाहिजे. सर, काढलं नाही. ऑर्थोग्राफिक व्ह्यूज एवढं क्लिअरली दिसत नाहीये, फोटो इमेज दिसत नाहीये. हा सर, परत काढतो. थोडं डार्क करायला पाहिजे आणि फोटो, आणि पार्ट नंबर तर अजिबात दिसतच नाहीये. पार्ट नंबर दिले नाहीयेस का? हॅलो, सर आय परत कॅनॉट सी एनी पार्ट नंबर. नंबर नाही दिले, फक्त नाव. नंबर नाही दिले. नाही ना, जो बिल ऑफ मटेरियल बनवलेस की नाही? सर तेच नाही बनवले, बनवायचं. हा मग हे अगोदर कम्प्लीट करायचं आणि नंतर मग पिक्चरला जायचं, ठीक आहे. नेक्स्ट. हा पिक्चरचं हा बरंच काम राहिलंय मग जिगचं. हा सर, मी 2-3 दिवसात कंप्लीट करून देतो. पिक्चर हॅलो. येस. पूर्ण वर्कपीस होल्ड करायला. हे थोडंफार तरी आणि क्लिअर पाठी दिसतंय, ते जिगचं तर काहीच दिसत. हे तरी थोडंफार दिसतंय, जिगचं अजिबातच नाही दिसत होतं. ओके, गो अहेड. सर पाठी ब्लॉक लावलाय, कारण मिलिंग करताना पाठी हे. You can speak in English or Hindi so that everybody will understand. Huh? आणि इकडे सी ब्लॉक Hello, हे hello, लावायचंय. Vishal. Either you speak in English or in Hindi so that everyone will understand. Huh? Yes, sir. Your colleagues also सर will हे understand. Please speak in English or सर Hindi. सर इधर सी ब्लॉक लगवाया है. Hmm. सी ब्लॉक लगवाया है इधर. और ऊपर से ड्रिल मारने किधर को. किधर किधर V ब्लॉक सर लगाया है? V ब्लॉक क्या C ब्लॉक क्या बोल रहा बी है? ने सी 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 ब्लॉक लगवाया है सर. T. सर पूरे
सी 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 पूरे वर्कपीस को लगा है। टी फॉर टाइगर या सी फॉर सी कलकत्ता क्या? कैट कैट हाँ, सी ब्लॉक सी। कहाँ पे है? एरो लेके जाओ ना उधर। सर ये वाला है पूरा, ये वो कलर किया है वो टेक देखो। योर एरो देयर। कलर एरो, किधर किया है? कुछ भी तो कलर नहीं है, सब पेंसिल कलर ही दिख रहा है मेरे हाँ सर को। वही। और ये तो ये सी सी ब्लॉक। अंदर अंदर सर, वर्कपीस स्क्वायर में है। हम्म। वर्कपीस स्क्वायर में मेरे को तो ऊपर किधर उसके सी, वो। मेरे को तो किधर सी ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम कौन सा सी ब्लॉक का बात कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। सर वर्कपीस के सर वो ऊपर। सी ब्लॉक का नीचे का फ्लैंज है ना, वो ऑफिस के नीचे से पास हो रहा है। अच्छा ऐसा, हाँ वो सी ब्लॉक ने उसको सी चैनल बोलते हैं। ओके सर। ठीक है। हाँ, और पीछे स्क्वायर बार लगवाया और 2 पिन स्क्रू से टाइट किया है। हम्म और सर मिलिंग क्या है इधर हम्म। साइड। क्या मिलिंग करना है? सर फेस 70 190 हाँ तो उधर मेंटेन करना है। सेटिंग, सेटिंग ब्लॉक भी आपको दिखाना है और कटर हाँ भी सर दिखाना है। साइड। हाँ वही बात। ओके। और बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल में 6 कॉलम करना है। 6 सो व्हाट आर दो 6 कॉलम्स? 6 कॉलम स्क्रू। मैंने अभी बताया था ना। हम्म। यस सर, 3 कॉलम। बिल ऑफ मटेरियल में 6 कॉलम्स कौन से होने हैं? सर इसमें 3 है, मेरे को दूसरा बनाना पड़ेगा। बिल ऑफ मटेरियल के 6 कॉलम्स कौन से हैं? सर सर 6 नहीं है, 3 है, 3 है। वो पीछे बिल ऑफ बार है मटेरियल वो में अभी मैंने बोले। वो चैनल है वो। अरे नहीं रे, बिल ऑफ मटेरियल में 6 कॉलम बनाने का है। टेबल जो है ना, बिल ऑफ मटेरियल का टेबल, उसमें 6 कॉलम बनाने का है। हाँ सो वो 6 कॉलम्स कौन से है? क्या क्या लिखने को पता नहीं। बोला था बिल ऑफ मटेरियल में? अभी मैंने बताया ना आशीष को। हाँ सर। हाँ वो बोलो, लिख के सर लेने का अभी ना। याद नहीं। अभी तो बताया था 5 मिनट पहले, एक भी नहीं याद है? सर आशीष, ये आशीष बोलो, आशीष बोलो अभी एटलीस्ट तुम लिख के ले लो, नहीं तो वापस तुम वही प्रेजेंट करेगा। एक आइटम नंबर एंड सेकंड कॉलम इज पार्ट डिस्क्रिप्शन। लिखने दो उसको, लिखने दो। थर्ड। थर्ड थर्ड। इज क्वांटिटी। फोर्थ। फोर्थ मटेरियल। फिफ्थ साइज। 6। एंड सिक्स्थ इज रिमार्क। ओके दिमाग में क्या लिखने का बोलो विशाल। अभी ये मत बोलो कि ये भी भूल गया। सर रिमार्क में अरे तुम ध्यान नहीं देता है क्या? अभी मैंने आशीष को इतना बोला, तुमको एक भी याद नहीं? अभी जब भी आशीष प्रेजेंट किया था तभी तुम था क्या? नहीं। हेलो विशाल, था। आई एम टॉकिंग टू यू। था सर। तो मैंने वो टेबल में, तुमको टेबल में कौन से कॉलम बनाने का वो याद नहीं। अभी मैंने रिमार्क्स में भी बोला था कुछ ना कुछ लिखना है,
तो क्या बोला था वो भी नहीं याद है, ऐसा कैसा? बोलो आशीष। पर हार्डनिंग किया तो वो हार्डनिंग का हार्डनेस क्या रेंज है? हम्म। कौन सा पार्ट को हार्डनिंग लगता है? तो ड्रिल मुझको लगता है हाँ और लोकेटर पोस्ट को लगता है। हाँ, जिधर जिधर रिलेटिव मोशन रहता है वहां पे हार्डनिंग रहेगा। जैसा कि वर्कपीस लोकेटिंग पे पास लोकेटिंग पोस्ट में जा रहा है, तो हम लोग लोडिंग अनलोडिंग फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे, तो वो अगर लोकेटिंग पोस्ट अगर सॉफ्ट है तो वो घिस जाएगा जल्दी और फिर बाद में प्ले होएगा। इसके लिए वो हार्डन चाहिए। बाद में जिग बूस्ट में से ड्रिल जाता है, तो ड्रिल इटसेल्फ इज हार्ड, तो वो भी डैमेज कर देगा बुश को, तो इसके लिए बुश भी हार्ड लगता है, हार्ड चाहिए। इसके लिए हम लोग रिमार्क में लिखने का कि बुश टू बी हार्डन, मतलब वो परचेस ऑफिसर को मालूम पड़ेगा कि अभी इसमें हीट ट्रीटमेंट करना है। विशाल। यस सर। बिल ऑफ मटेरियल का जरूरत क्या है, काय के लिए? सर क्योंकि कोई भी मटेरियल का यूज करेंगे तो ये हो सकता है, डैमेज बिल हो ऑफ सकता मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर परचेसिंग। डिजाइनर डिजाइन करता है, बिल ऑफ मटेरियल बनाता है और वो परचेस डिपार्टमेंट में भेजता है। कि परचेस डिपार्टमेंट, परचेस ऑफिसर या परचेस इंजीनियर, ही परचेस द मटेरियल एज पर द साइज गिवन इन द बिल ऑफ मटेरियल। अभी बोलो रिमार्क में क्या क्या चाहिए? सर हार्डनिंग चाहिए ड्रिल बुश की। अगर किसको भी हार्डनिंग करना है या किसको भी पेंटिंग करना है या प्लेटिंग करना है, तो दैट यू हैव टू राइट इन रिमार्क। तो परचेसर को याद रहता है कि ठीक है, अभी मेरे को हार्डनिंग के लिए भी कोई भी तो देखना है पार्टी, या प्लेटिंग के लिए भी कोई भी तो पार्टी देखना है, क्योंकि नॉर्मली ये हार्डनिंग प्लेटिंग वगैरह वो सब बाहर होता है, इन हाउस फैसिलिटी नहीं रहते। यस सर। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो, ध्यान दे दो। नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 12, वासिम। Yes, sir. Yes, sir. एक moment, sir. सर एक मिनट, हाँ मेरा फाइल थोड़ा ये हो रहा है, ओपन करके मैं बता दूँ। चलेगा। सर अब नेक्स्ट ग्रुप को ले सकते हो क्या? मेरा फाइल थोड़ा ओपन नहीं हो रहा हाँ ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप प्रेजेंट करो। ग्रुप नंबर 13। Yes, sir. So can you see my screen? यस हाँ, Hello. यस यस। बिल ऑफ मटेरियल you will have to change. Yeah, sir. We'll change it. Show me bill of material.
एक मिनिट ना, जरा 3D मॉडेल शो मी हियर 3D मॉडेल jig. So this is the exploded view. Okay. So we have used the leaf jig. You have to show the drill. Yeah, sir, we'll show. Actually, हाँ we have shown it in the 2D view, हाँ, sir. in 3D 2D, view. हाँ, exactly. हाँ, so like that, this is also sufficient. Okay, even if you show it on 3D model, that is also sufficient. Good. Next. Manthan तुझा group. Hello. Hello, Shivam. Yes, sir. Show me. अच्छा. I have not seen your bill of material. So can you see? No. Still zoom. Yeah. Part number 1. Yeah, sir, we'll remove the component, sir. Then part number 2 is jig. What do you mean by jig? Show me that jig. Part number 2, show me. Then adjustable locator. So this Where the is whole part number 2? Part number 2. Where is part number 2? so adjustable locator or the jig. No, part number 2. Item number 2. You have written jig, no? Yes, sir. So show me that item number 2. Jig. This sir. Where it is? So this on the screen. You have written leaf jig plate. Okay. Yeah, sir. So you have to write same here also. That is, Okay. and second thing is you are not supposed to write in text. You are supposed to write number. Okay, in the Okay. drawing. Yeah. So erase all that. Okay. Okay. Then drill bush, eye bolt and bolt. What is the size of the eye bolt and what is the size of the bolt? Where is that? Show me that part number 5 and 6. Sir, I bolt. Eye bolt. What is the size? Sir, it's the standard size only. I'll write it, sir. No, but whether it is 10, 12, 12 14, only. 16. Huh? 12. 12. Then you must write, no, otherwise how you will order, how the purchase engineer will write and order. M12 by length also you have to write, no, because eye bolts are available. Like suppose if you say M12, वो सामने वाला बोलेगा साहब आपको 50 mm लंबा चाहिए, 100 mm लंबा चाहिए, 150 mm लंबा चाहिए, ऐसा, like that. Okay, sir. Okay. Then you have written only bolt. So where is that? So here to fix the eye bolt. Where it is? Bolt. In the side view, sir, it is seen. Huh? In the side view, you can see that, sir. Where it is mentioned? Where you have written that bolt? Sir, here. No, in the bill of material you have written bolt, but in the drawing where you have written that bolt? Can you show me? Yeah, drawing. I It is haven't. missing, no? So Yeah, you yeah. have to write in the drawing, no? Yeah, Otherwise, sir. how the people will come to know? And you have to write only item number. You are not supposed to write the names in the drawings. Okay? Yes, sir. We'll change that. Yeah. और जो कंपोनेंट का जरा ये है ना उसको जरा, हाँ ठीक है, कलर बराबर है, ओके, उसका भी साइज लिखना है, वो बोल्ट का भी साइज यू हैव टू राइट. हाँ. Yes. Yes, yeah. Okay, then next you have written what? Support. Okay, support. Where is the support? Sir, in the red star hatches. Is it a support plate or क्या है वो?
तो सपोर्ट प्लेट है. So write support plate. Okay. Then Okay. drill, is it a part of a jig? No sir. No. So you have to remove that. Okay. And then dowel pin. Okay. So dowel pin. Now let us come to the material. So dowel pin material will be EN24. उसको hardening होएगा. ठीक है, dowel pins. Okay Not sir. stainless steel. Hardened to 58 to 60 RC. Then support plates are made up of MS. ठीक है. Okay sir. Then bolt में you have to write standard. I bolt also you have to write standard. ठीक है. Drill bush you have to write EN36. और remark में लिखना है to be hardened to 58 to 60 RC. ठीक है. Adjustable locator. वो एक्चुअली क्या है एडजस्टेबल लोकेटर? पार्ट नंबर 3. I missed it. Where is that adjust? What is this? What it is? वो क्या है एडजस्टेबल लोकेटर? Sir, we have given the threading to the locator sir. नो नो, इज इट अ पिन, इज इट अ प्लेट, क्या है? समझ में नहीं आ रहा. मतलब अगर ऑर्डर करना है तो मैं ऑर्डर कैसा करूँ? राउंड बार ऑर्डर करना है, प्लेट ऑर्डर करना है, कि क्या ऑर्डर करना है? ऐसा मैं बोल रहा हूँ. हाउ द परचेस इंजीनियर विल कम टू नो व्हाट इज टू बी Sir, it is a ऑर्डर? locator pin and we have given it a threading. सो यू हैव टू से पिन. ओके, लोकेटिंग पिन. ठीक है. Okay sir. हाँ, और उसका साइज लिखो. ठीक है. और उसके ऊपर आपको नट भी लिखा है. हाँ, Yes sir. तो उसको एडजस्टेबल क्यों बोलते हैं? वाई यू आर कॉलिंग इट एज एडजस्टेबल लोकेटर? जरूरत नहीं ना, खाली जस्ट से लोकेटिंग पिन और लोकेटिंग पोस्ट. ठीक है. Okay. Yeah. तो इसको हार्डनिंग करना है EN24 58 to 60 RC. ठीक है. अभी ऊपर का जो स्विंग प्लेट है वो इधर मेंशन नहीं किया है, MS का बिल ऑफ मटेरियल में, वो भी तो लगेगा ना. Okay sir. स्विंगिंग जिग प्लेट. करेक्ट. Yeah sir. हाँ. बॉटम का प्लेट, साइड का प्लेट्स, so that also you have to write. ठीक है. Yes sir. एक भी प्लेट नहीं लिखा है, कौन सा भी. साइड का आई थिंक यू आर रिटन दैट लीव जिग प्लेट. ओके. Yeah. बट फ्रंट व्यू में जो दो साइड का प्लेट, अभी ये जो टॉप व्यू में दिख रहा है लीफ जिग प्लेट, लेकिन जो फ्रंट व्यू में जो दिख रहा है ना दो साइड का, हाँ sir. नहीं लिखा है. Okay. Yes sir. एंड प्लस द स्विंगिंग जिग प्लेट दैट आल्सो हैज टू बी रिटन. Yes sir. फिक्सचर दिखाइए. सर फिक्स्चर अब तक हुआ नहीं है. कितना हुआ है? सर 1 minute. हाँ. यस. सर. या हाँ सर, ये इतना ही हुआ है. ठीक है. हाँ, ट्राई टू कंप्लीट. या सर. सेटिंग ब्लॉक सर दिखाने एक्चुअली. का है और मिलिंग कटर भी दिखाने का है. ठीक है. हाँ सर. सर एक्चुअली थोड़ा ये लेट हो जाएगा क्योंकि ओके. लैपटॉप मेरा मदरबोर्ड खराब हो गया तो वो ठीक है. रिपेयर के लिए दिया. ठीक है, नो प्रॉब्लम. या नो प्रॉब्लम.
Next group, Yes, sir. So is it visible? yes, So this is the 3D model of the components. yeah, So only we have to drill the 4 holes. yeah, And very sir, good. so this will be used as a locator and clamping arrangement as well. Okay, So got this is it. the 2D view. ठीक है. Okay, then bill of material. Yes, sir. So is it visible? Yes. You should have 6 columns. Yes, sir. I will do the changes. That jig you have to remove. What is that jig means? Yes, Item sir. The number jig. 1. Do you mean it is jig plate? Yes, sir. Jig plate only. Then item number 2. The bush. Item number 3. The component. That you have to remove Okay, sir. because it is not a part of the jig. Item number 4. So it is the pad over here. Okay. Is it a round piece or So tapered. huh? Tapered. Is it a flat or is it a round piece? Round, sir. Okay. So you have to say that pad है ना round pad ऐसा लिखो. हाँ? Okay, sir. Okay. Then next double-ended stud, double-end stud. Stud is always double-end, so no need to write double-end. Only say stud. Okay. Okay, sir. By default, stud is always double-ended, so no need to write double-end. M24 lock nut, correct. Then plain washer, Plain washer 24 mm. Narrow. 24 mm और उसके बाजू में Narrow. नैरो. तो नैरो लिखने का जरूरत नहीं है. नैरो. हाँ, sir. What you have written? Narrow. Narrow. What do you mean by narrow? What do you mean by narrow? Sir, I'll remove it. Hello. Yes, sir. What is the meaning of narrow? So I'll remove it. Okay. Next. क्या लिखा है वो? M20 hexagonal bolt, hexagonal nut. Then M20 by 45. This is correct. Okay. Then washer again narrow. I don't understand ये narrow क्या लिखता है तुम? और जब भी वॉशर और नट एक साथ ही लिखने गए. ओके. बिकॉज नाउ डेज you get a combination nut and washer. Combination nut and washer में nut and washer they are together. Okay, so you have to write M20 combination nut and washer ऐसा लिखने का. ठीक है. ठीक है, sir. मटेरियल दिखाओ. अभी वो जो जिग प्लेट है वो MS का रहेगा. बुश है वो EN36. ठीक है. कंपोनेंट को निकाल देने का है. राउंड पैड वो भी MS का. देन स्टड
वो स्टैंडर्ड लॉक नट स्टैंडर्ड बोल्ट नट जो भी है वो सब स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। एंड हार्डन बुश विल बी EN36। ये सब चेंजेस करो, मटेरियल एक भी बराबर नहीं है। ओके सर। हार्डनेस ये क्या लिखा है नेक्स्ट कॉलम, हार्डनेस जो HRC लिखा है ना हाँ वो सर। आपका रिमार्क में आएगा। हार्डनिंग में खाली आपको इसको ही हार्डन करना है, बुश को ही, ठीक है। ओनली हाउ टू हार्डन द बुश ओनली। और वो लोकेटर का नहीं दिखा है इधर, लोकेटिंग पिन वगैरह, लोकेटिंग पोस्ट, वो भी तो इम्पोर्टेंट है बिल ऑफ मटेरियल में, दैट इज द सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है सर, आई ऐड। हाँ, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट, यू हैव टू ऐड दैट। हाँ, यस सर। लोकेटिंग पोस्ट। पिक्चर दिखाइए, बेरिंग पिक्चर। तो पिक्चर आई हैव डन रफ। रफ ड्राइंग दिखाओ। सर थोड़ा लाइट है। ओके, ट्राई टू कंप्लीट सेटिंग ब्लॉक दिखाने का है, मिलिंग कटर भी दिखाने का है। ओके, यस सर। सर डेट एक्सटेंड हो सकता है क्या संडे तक? ठीक है, करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। नाउ वसीम, हो गया तुम्हारा, फाइल फाइल खुल गया। हाँ सर, हो गया सर, एक मिनट। हाँ सर, प्रेजेंट करता हूँ। करो। दिख रहा है सर? हाँ जी। हाँ सर, ये कंपोनेंट, उसका 2D व्यू, ये जिग का मैंने जिग थोड़ा चेंजेस किया सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ यार। सर, जिग में थोड़ा चेंजेस किया मैंने। या अभी एक नॉर्मल स्क्वायर फ्रेम है समझिए, बॉक्स टाइप, दोनों जगह से हॉलो है। यहाँ पर ये अपना एक लोकेटर लगा है छोटा सा, ताकि वर्कपीस वन साइडेड यहाँ से इन जाएगा ओके और यहाँ से वी ब्लॉक से टाइट हो जाएगा। ओके ओके, और यहाँ पे एक फिर भी लोकेट करने के लिए, अगर कंफ्यूज ना हो अगर वर्कपीस अंदर कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे जो हमारा स्लॉट है एडीएस का, वैसा एक और एक हम ये पिन लगाएंगे, हम पिन अटैच करेंगे परमानेंट, ओके जो प्लेट पे लगे रहेगा, तो ओके। वर्कपीस यहाँ से सीधा अंदर जाके सेट हो जाएगा। यहाँ से वी ब्लॉक से ठीक है। एक बार में वन हैंड से टाइट हो जाएगा, तो ओके। हमारा जिग हो गया फिक्स। और ये हमारा बुश, वहां से ड्रिल बुश, तो एक बार में पहला वाला था जो बॉक्स जिग से मैंने यूज किया था, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट लगा मेरे को एक मोमेंट के लिए, तो मैंने उसको और सिंपल सिटी करके लिए, और मतलब अपना प्रोडक्शन हमको बचाना और वक्त जल्दी भी होना चाहिए ना, तो ये मेरे को बेस्ट लगा था, तो मैंने चेंजेस कर दिया पूरा। और 3D व्यू ऐसा रहेगा। ठीक है। ओके सर। इसमें ड्रिल दिखाने का। हाँ सर, उसमें ड्रिल में दिखाता हूँ सर। ओके यहाँ ऊपर ना से एक ड्रिल बार दिखाओ ना। ओके। ओके सर, और कुछ सर? इसमें कंपोनेंट नहीं दिख रहे बराबर, वर्कपीस। सर एक्चुअली मैं कंपोनेंट ये है सर, इसको कुछ थोड़ा कलर कर कलर, दूं क्या? हाँ कलर कर ठीक दो। है सर, ठीक है सर, मैं इसको कलर कर देता हूँ। एक्चुअली सर मेरे पास सॉफ्टवेयर में इनको यूज करने आता है, लेकिन मेरे पास पीसी नहीं इसमें यूज कर सकूँ, और बाकी लोगों को ना आता है, मतलब बाकी के पास ओके। भी नहीं है, तो इसलिए मैंने हैंड ड्राइंग किया। चलेगा ना सर? चलेगा। ओके सर। अभी बिल ऑफ और मटेरियल। हाँ हाँ, सर, बिल ऑफ बिल ऑफ मटेरियल मटेरियल में चेंज कर दूंगा सर, दो चेंज और करना कॉलम डालने दो। पड़ेगा। हाँ, हाँ सर, और दो कॉलम डाल कंपोनेंट दूंगा। वगैरह वर्कपीस वगैरह सब निकालने का उसमें से। हाँ, हाँ दो और कॉलम डालने का, रिमार्क डालने का, साइज डालने का, ठीक है। ओके और सर, ये हाँ इसमें क्या चेंजेस करना है सर अभी? इसमें और दो डालना है ना, एक हाँ, और रिमार्क दो। एंड हाँ, रिमार्क रिमार्क एंड और साइज। साइज। हाँ, ओके सर, ठीक है। बाकी सब बराबर है सर, देख लो एक बार। जूम करो, ओ- पढ़ने को नहीं आ रहा है। ओके, अभी दिख रहा है सर? हाँ, डिस्क्रिप्शन, जिग बॉडी, वर्कपीस को हटाना है, बुश, वी ब्लॉक वाइस नहीं, खाली वी ब्लॉक ही रखो, लोकेटर ओके। पिन, हाँ, स्क्रू। अभी टाइट नट मतलब नहीं, खाली नट लिखो, अभी नट हाँ का नट साइज, था, हाँ सर, वो मैंने नट गलती से नट का टाइट में लिख साइज, दिया। नट का साइज लिखने का, और हाँ मटेरियल सर, स्टैंडर्ड। 2x2 का है।
2x2 का का है स्टैंडर्ड। 2x2। हाँ सर मैंने तो मतलब 20x20 का हाँ नॉर्मली 20। स्क्वायर वाला हाँ तो हैंड एम से हो जाएगा ऐसा। ऐसा लिखो M20 स्क्वायर नट, ठीक है। बाद में उस और ओके। मटेरियल स्टैंडर्ड, बाद में स्क्रू में क्या लिखा है? स्क्रू का साइज भी नहीं दिया है। हाउ द परचेस इंजीनियर विल परचेस? नहीं सर वो स्क्रू नहीं सर वो साइज नहीं लिखा ना साइज है। साइज लिखने का मैंने भी है, नहीं हाँ लिखा। हाँ स्क्रू का सर 10 है साइज सर उस, नॉर्मल 10 बार हाँ रहेगा 10 10 mm 10 10 एम mm 10 बार उसका रहेगा। लेंथ, और उसका लेंथ भी, ठीक है। हाँ लेन भी हाँ सर लेन भी हाँ, लिखा हुआ और मटेरियल उसका भी, स्क्रू का मटेरियल भी स्टैंडर्ड लिखो, ठीक है। लोकेटर पिन स्टैंडर्ड का लिख दो ओके। हाँ लोकेटर पिन EN24, उसका भी साइज लिखने का, ठीक है। बी EM ब्लॉक, हाँ सर उसका साइज हाँ हाँ ओके सर इसका क्या बोला सर एक मिनट सर हाँ सोनिया। लोकेटर पिन हाँ सर लोकेटर पे नहीं है सर। EN24, और हाँ, वो हाँ दिमाग में सर लिखने का हार्डन टू 28 to 30 RC। ओके सर एक मिनट हिमांशु देन सर बी हिमांशु। ब्लॉक स्टैंडर्ड, हाँ सर देन बुश EN36 hardened to 58 to 60 RC। जी बाद सर में जिग बॉडी MS, ओके। और उसका ये साइज, जिग बॉडी एमएस हाँ सर जिग बॉडी माइल स्टील का होगा मैंने एसएस का हाँ लिख दिया। SS किधर भी नहीं, SS इज एसएस यूज नहीं वेयर देर इज अ करोसिव एनवायरमेंट। हाँ करोसी हो जाएगा वो ओके। मतलब जगह अगर एसिड में अगर आप यूज कर रहे हो, हाँ जहाँ पे जंग पकड़ता है वहां पे आपको SS मटेरियल यूज करने का, अदरवाइज SS नहीं सर यूज करना। सर ऐसे तो नो करोजी तो हो ही जाता है सर हर जगह पे। करोजी तो हो ही जाता है सर अभी अभी हमको पता नहीं ना कि कहाँ है हम्म। कि कहाँ यूज होगा ये। नहीं नहीं, करोजी तो ऐसे ये तो तो हम लोग को ड्रिलिंग के लिए यूज करना है ना, ऐसा कैसा हाँ एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है। हाँ लेकिन सर ये तो यूज होगा ना सर अपने को जब भी नहीं कूलेंट तो यूज, यूज करेंगे जब भी, ना। हाँ कूलेंट उससे तो यूज उससे करेंगे नहीं ना होता सर। है, जब भी यूज नहीं होता है ना तभी हम लोग उसको साफ करके उसको ग्रीज लगा के रखते हैं, हाँ हाँ नॉर्मली तो या हर कंपनी ग्रीज, में हमको ग्रीज ये या ऑयल मेंटेनेंस के लिए लगा, वही है या यस सर। ग्रीज या ऑयल लगा के रखते हैं, तो वो हम्म वो जंग नहीं पकड़ता है उसको। यस सर हम्म? मतलब अगर सपोज अगर टैंक है और वो एसिड का टैंक है, मतलब ये टैंक में सपोज एसिड आपको रखने का है, यस सर तो वो जो टैंक का मटेरियल है, प्लेट्स है, वो SS का लेने का, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, समझे। ओके ओके वेर इट इज एक्सपोज टू एसिड, देयर यू हैव टू यूज स्टेनलेस स्टील। वहां पे आपका स्क्रू भी स्टेनलेस स्टील का रहेगा, बोल्ट भी स्टेनलेस स्टील का रहेगा, बिकॉज इट इज हाँ एक्सपोज टू एसिड। ओके सर ओके, और कुछ? ओके सर या एक मिनट सर हाँ एक मिनट। सर एनीथिंग दिख रहा है एल्स? सर आपको। नहीं। एक मिनट सर मेरे को और डाउट है एक मिनट सर। हम्म, मैं वो आपस से कंफर्म कर लेता हूँ दो आपसे। मिनट है, जस्ट अ मिनट, जस्ट वेट। हाँ ओके सर
Sir, are you done with the lecture? नहीं रुक जा सर आ रहे हैं।
सर हाँ हेलो, हाँ टेल मी. सर आई हैड अ फ्यू डाउट्स. हाँ नो वसीम. Yes, sir. हाँ वसीम was asking something, no? सर वसीम का हाँ. यस सर, एक मिनट सर. बिल ऑफ मटेरियल का एक बार वापस पूछना था मुझे, एक बार थोड़ा डाउट है मेरा. बिल ऑफ मटेरियल में कुछ नहीं, जो स्क्रू है ना उसका मटेरियल स्टैंडर्ड रहेगा, नट और बोल्ट का हाँ. मटेरियल भी स्टैंडर्ड रहेगा. बुश है ओके. वो EN36 रहेगा, उसको हार्ड करना है. EN 58 EN36 36. EN36. हाँ, ओके. पिन का मटेरियल EN24 रहेगा. दोनों का हार्डनेस 58 to 60 RC रहेगा. और बाकी का जो सपोर्ट प्लेट है, बी ये लोकेटिंग प्लेट है, हाँ वो सब प्लेट्स जो रहेगा वो सब MS का रहेगा. बस हो गया, ओके. सिंपल. वी आर नहीं नॉट सर, गोइंग इनटू लोकेटर. मच डिटेल. ओके, ये आपने लोकेटर पिन लोकेटिंग का पिन बताया था. EN24. EN24. EN24 और पिन इसका लंबा हार्डनेस. रहता है, हाँ हाँ सर. 58 to 60 RC. बुश छोटा रहता है, स्टब. ओके. उसका हार्डनेस उसको बाद में करने हार्डनेस, का ना. हाँ हार्डनेस यू हैव टू राइट इन रिमार्क. हार्डनेस यू हैव टू राइट इन ओके. रिमार्क. ओके सर. हाँ उसको, हाँ हम बूस्ट बनाएंगे.
तो या तो हमको बुश बनाना पड़ेगा या तो फिर हमको रेडीमेड मिलेगा, अदरवाइज अपने को हार्ड Normally, ready-made bush is very difficult to get. Yes, Ready-made bush because you have designed your own jig plate. yes, yes. And you have your own holes. आपका जो space वगैरह space constraint की स्टैंडर्ड भी, वजह यस सर, स्टैंडर्ड भी आता actually है सर। hello yes it is a good practice to use standard bush. आपका जो design है Yes. ना हाँ, you have to design, that is what is called the design for manufacturing. It's always a yes, good sir. practice to design using standard material, so that saves Yes. your manufacturing cost. Yes, It's sir, always a वही good सर, practice. yes sir. But many And so times it may not be possible because of the space constraints, so that time you have to make it. So अगर standard bush use रहे तो रिमार्क में लिखने का यन बुश अपने यन 36 लिखा है मटेरियल में, रिमार्क में लिखो स्टैंडर्ड करके। सो हार्डनिंग है Okay. वो निकल जाएगा, स्टैंडर्ड आप ले रहे हो तो हार्डन करके ही आएगा। ओके ओके ओके। एंड सर इसका साइज क्या लिखना पूछता हुआ है ना कि जितना डायमीटर का वही पूछ, हाँ, वही साइज आएगा? आप फिनिश साइज ही लिखो अभी। ओके, आई डोंट वांट टू फिनिश कंफ्यूज साइज। यू, फिनिश साइज जो है वही ओके। लिखो, ठीक है? तो इनर, तो क्योंकि उसमें आपको रॉ इनर, मटेरियल आपको मालूम नहीं कौन सा साइज में अवेलेबल रहता है, मार्केट आपको मालूम नहीं है ना, इसके लिए आई हैव टोल्ड यू यस दैट यू राइट ओनली द फिनिश साइजेस, ठीक है? फिनिश साइज, हाँ फिनिश तो साइज लिखना है। हाँ तो परचेस इंजीनियर विल टेक द डिसीजन क्या साइज में तो मतलब हाँ तो आपने सर अगर आपने सपोज 22 लिखा है प्लेट का थिकनेस, हाँ, तो परचेस इंजीनियर नोस कि दिस इज अ फिनिश साइज, सो आई हैव टू ऑर्डर मटेरियल विच इज मोर देन 22, तो वो देखेगा 24 थिकनेस का है क्या, 25 थिकनेस का है क्या, 30 थिकनेस का है वो क्या, तो अकॉर्डिंगली ही जिग विल का हो गया ना ऑर्डर। सर, ये वो तो जिग का हो गया ना, जिग प्लेट के लिए जो कौन सा अभी भी मैं जिग जो एग्जांपल बनेगा। दिया, मैं एग्जांपल दिया। हाँ, ओके 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 सर। तो साइज में यही लिखना है सर, डायमीटर जितना डायमीटर का मेरा बूश है वही उतना ही लिखना है ना? हाँ मतलब अगर आपको अंडरस्टैंड। परचेस करना है तो यू शुड बी एबल टू, इट शुड बी क्लियर टू यू हाउ डू आई ओके सर, परचेस, समझ गया सर। समझे ना? हाँ। ओके, समझ गया सर। हम्म। और ये पिन का भी वही साइज रहेगा ना, जो मतलब पिन तो भी नॉर्मली मैंने स्क्वायर डायमीटर वाली पिन ली है, हाँ तो आपका जो, जितना मेरे 6 mm। हाँ जो हाँ लोकेटिंग पिन है आपका जो वर्क पीस है उसके हिसाब से पिन का डायमीटर आएगा। हाँ सर, वो हो गया वो समझ। और सर मेरा जो जिग है उसको वो प्लेट से ही बनेगा, लाइक प्लेट कटिंग करके बाद हम्म। में अभी बॉक्स बनेगा ना सर, तो हाँ वो तो उसके लिए प्लेट में। तो जो जो जितना भी प्लेट यूज किया है वो सब प्लेट्स का डायमेंशन आएगा। हाँ दो तो प्लेट 15 mm का ही पूरा है, पूरा मेरा जिग का हाँ जो साइड का प्लेट 15 है mm 15 mm थिकनेस का है, है। लेकिन उसका लेंथ विड्थ अलग अलग रहेगा, बराबर है ना? हाँ तो लेंथ में को टोटल लगेगा ना, टोटल डालूंगा ना टोटल फिर नहीं, तो। अरे जो कितना प्लेट्स यूज कर रहे हैं आप, वेल्डिंग कर रहे हैं ना, चार हाँ पांच प्लेट वेल्डिंग यूज, करके होगा। हाँ तो 4 हाँ प्लेट यूज चार कर रहे हैं पाँच, तो चारों प्लेट का आपको डायमेंशन देना पड़ेगा ना। वही ना सर, वही मेरे को पूछना था, उसको सो साइज कैसा दूँ? बॉटम प्लेट, साइड प्लेट, वो तो आपका जिग में जो है डायमेंशन उसमें मालूम पड़ेगा ना मॉडल में। हाँ हाँ, तो मैं सिर्फ प्लेट का थिकनेस डालूंगा तो बस इनफ हो जाएगा ना? थिकनेस नहीं, लेंथ और विड्थ भी तो देना है ना, अदरवाइज ऑर्डर कैसा करेंगे, आपका मॉडल में मिल जाएगा ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरा बोलने का था क्योंकि क्योंकि लाइक जब जब 100 लाइक क्योंकि 100 बाय रॉ 75 बाय 100 बाय 75 बाय 10 mm, दैट इज इनफ, ऐसा हो गया। ओके ओके, बे, मैं समझ हाँ गया सर, समझ गया बेस कि प्लेट, कैसा डालना है, मैं समझ गया, हाँ समझ गया सर। टॉप मेरे, प्लेट, साइड हाँ प्लेट, सर, ऐसा। जितने प्लेट एक हाँ। प्लेट पे जितना प्लेट मेरे बैठेंगे हम्म उतने प्लेट का कैलकुलेशन आके हम्म कितना टोटल प्लेट लगेगा एग्जैक्ट, हम्म उसके हिसाब से मैं लग देता। ओके सर, ओके, समझ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है। और हाँ सर बोलो। मेरे को ये भी दिखाना था आपको। हाँ क्या? अ, मेरा, वो जो दिखाने वाला था वो तुम मेरे को देने वाला था, क्या हो गया? हाँ हाँ सर वो रह जा रहा है सर मेरे से। वो जल्दी से तो जल्दी मैं करो, आपको जल्द, एक दो हाँ दिन हाँ में सर दे वो, दो। हाँ सर आपका सर ये भी तो आपको दिखाना था। क्या? इसमें मिलिंग फिक्चर सर वो कंप्लीट करके दिखाओ, नो प्रॉब्लम। हो गया कंप्लीट सर, मिलिंग फिक्चर अच्छा, कंप्लीट है। बिल ऑफ मटेरियल वगैरह सब रिवाइज करके वापस से बताओ। हाँ अच्छा आप, ओके सर हाँ, चलेगा। अभी एक ही सीधा लास्ट 3D, फाइनल दिखाओ, इससे भी परफेक्ट, नो करेक्शन। कौन सा ये, अभी ड्रिल जिग तो हो गया ना सर? जीग और फिक्सर दोनों भी करेक्शंस करके दिखाओ वापस से, ओके सर, हाँ हाँ समझ गया सर, विद ओके बिल ऑफ थैंक यू मटेरियल, सर। ठीक है, ओके वेलकम। सर। सर बोलो आशीष। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ सर एक सेकंड, मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर करता हूँ, हाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ। बोल दीजिए ना अभी तो। बोलो। अरे
सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। सर ये जो बिल ऑफ मटेरियल है ना मेरा, हम्म तो सर इसमें मेरा चैनल जो जिग प्लेट है मेरा सी सेक्शन है, 15 थिकनेस है, एंड देन बीच का डिस्टेंस 90 है, तो उसके लिए क्या लिखूं साइज में? अभी वो जो सी है आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा ना मार्केट में, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। वो तो सी इज मेड अप ऑफ 3 प्लेट्स, तो आपको उसको डिवाइड करना है 3 प्लेट्स में। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, या साइड प्लेट या टॉप प्लेट, ऐसा नामकरण उसका करना पड़ेगा। तो सर इसके नीचे ही 1 2 3 करके लिख दूं क्या यहाँ पे? चलेगा, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3। हाँ ओके सर। और सर ये विंग नेट को क्या आएगा स्पेसिफिकेशन? जैसे M10 ही लिखूं उसका मतलब और कुछ M10 नहीं विंग आएगा? नट, M10 विंग नट बस। और सर पिच नहीं आएगा M10 into 1.5 ऐसा कुछ? नहीं, वो स्टैंडर्ड आ जाएगा, जो स्टैंडर्ड है ना M10 के लिए वही आ जाएगा। अगर आपका कुछ नॉन स्टैंडर्ड है 1.75, देन यू हैव टू राइट। ओके सर। एंड सर मेरा मिलिंग फिक्सर भी बनाया है मैंने, हाँ, तो बस एक बार वो देख लेना है बराबर है कि नहीं। कटर 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 नहीं दिख रहा है। सर कटर लगाएंगे सर, आपने भी बोला सर फोटो लगाने का, तो सर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का इश्यू हो जाएगा, फिर पीछे का पार्ट दिखेगा नहीं। ठीक है, बराबर है, ये तो परफेक्ट है। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ, आपने जो मिलिंग कटर का फोटो लगाने बोल रहे हो आप, हाँ इमेज, हाँ हाँ, तो हाँ। सर जब हम लोग मतलब इमेज लगाएंगे वर्ड फाइल में, तो लाइक सर पीछे का ट्रांसपेरेंसी का इश्यू हो जाएगा यहाँ पे इतना नहीं पार्ट होएगा, अभी देखो वो अपना कौन है ये, तुम्हारा रैन करके है ना, परेरा, पता नहीं। रैन फर्नांडिस परेरा। है, रेनन फर्नांडिस है। हाँ रेनन फर्नांडिस, रेनन फर्नांडिस, उसने देखो एक इमेज चिपका है, उसको कांटेक्ट करो। अच्छा सर ठीक है। या तो फिर हम लोग ये जो ड्रिल है हम लोग 3D में बनाने से, हम लोग यहाँ पे 2D में बता देगा चलेगा क्या? टुडे में बताएगा तो भी चलेगा। 3D में उसका और थोड़ा इफेक्ट आएगा। वो रेनन फर्नांडिस को कांटेक्ट करेगा तो यू विल कम टू नो, और वो ज़्यादा ये नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फटाक से हो जाएगा। ओके सर। हाँ, और क्या? नहीं सर हो गया बस। नहीं, कुछ पूछ रहा था ना फिक्सर का। नहीं सर फिक्सर का वही बताने का था, मतलब अभी मैं यहाँ पे अगर फोटो लगाऊंगा ऐसे, तो ऐसा नहीं, सर यहाँ ऊपर ऊपर आएगा ना, साइड ऊपर आएगा ना, इट इज फेस मिलिंग कटर। गूगल में टाइप हाँ करो फेस मिलिंग सर कटर। मिला मुझे फेस हाँ, मिलिंग कटर, अभी मैं यहाँ पे जब लगाऊंगा सैंडविक, मेरा। हाँ सैंडविक का कैटलॉग में भी आपको फेस मिलिंग कटर का इमेजेस मिल जाएगा, सैंडविक, इसका नहीं मीडिया। सर वो मिल तो जाएगा, अभी मगर यहाँ हाँ, पे अगर फोटो लगाऊंगा तो पीछे का ट्रांसपेरेंसी का इश्यू होता है, इसलिए बस आपको बोला। अच्छा अच्छा, ओनली पीछे का वो खाली एक इंक्लाइन लाइन है, वो कट हो जाएगा ना, दैट इज ओके। अच्छा। एंड सर हमको टेनन बोर्ड लगाने का जरूरत नहीं है ना? ठीक है, चलेगा। हाँ, जरूरत नहीं है। हाँ। दिखाएगा तो एंड सर, अच्छा है, इधर इधर दिखा सकते हैं ना, राइट साइड में। सर बनाना भी तो पड़ेगा ना उसके लिए हम। टेनन बोल्ट बनाने को कितना टाइम जाता है? आधा घंटा, चल ज़्यादा से चलेगा ज़्यादा। सर बना तो। हाँ, एंड सर ये जो मेरा प्लेट है इसका मैंने नाम, मतलब ये मेरा प्राइमरी फिक्सर प्लेट है, ये मेरा सेकेंडरी बेस फिक्सर प्लेट प्लेट बोलो, बेस प्लेट 1, बेस प्लेट 2। है। बेस प्लेट और बेस प्लेट तो ठीक है चलेगा। हम्म सर मुझे सर मुझे भी हम्म अगर 3D मेरा ये पिक्चर 3D बाकी है 3D में, तो मेरे को भी ऐसा बेस प्लेट बना के करना है। हाँ, बेस प्लेट तो सब में टेन आएगा ही ना, फिक्सर के लिए। ओके बेस प्लेट है वो टेबल पिक्चर पे जाता है ना। ओके ओके हाँ सर। तो हम्म फिक्सर पे लगा वोटिंग के ये रूम। बेस प्लेट टेबल के ऊपर टेनन के साथ फिक्स हो जाता है। ओके सर। हम्म सर और कंपलसरी नहीं है ना कि 2 प्लेट बनाए? अगर एक ही प्लेट में हो जाता तो एक प्लेट में करो, बट देन टेनन यू हैव टू शो प्रॉपरली। ओके अगर एक रहेगा तो अच्छा रहता है एक्यूरेसी के लिए। सर हाँ, एक रहेगा ना, तो फॉर एक्यूरेसी इट इज बेटर इफ इट इज वन। सर दो प्लेट में वापस आपको बेस प्लेट 1, उसको लोकेट करो मशीन टेबल के ऊपर, और उसके ऊपर वापस दूसरा फिक्सर रखो, उसको लोकेट करो। तो क्यूमुलेटिव एरर ज्यादा आ जाता है इसमें। हाँ बोलो। हाँ सर सर हो रहा था, अगर फिक्सर के नीचे अगर वी ब्लॉक होता है ना सर, अपना जो टेबल जो होता है वी टेबल होता है, नहीं नहीं, उसमें टेबल स्लॉट्स होते हैं। उसमें तो टी स्लॉट्स रहते हैं, टी स्लॉट। हाँ सर, तो हाँ सर टी स्लॉट्स लगा देंगे तो भी चल जाएगा ना सर, अगर हाँ, वही फिक्सर के उसमें ही नीचे। हाँ वो टेनन्स, वो जो फिक्सर का जो बेस प्लेट रहेगा ना, उसमें हम लोग हाँ टेनन डालते हैं, और वो टेबल के ऊपर लोकेट कर देता है फिक्सर, तो एक ही हाँ प्लेट। तो हम हाँ यस 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 हाँ। ओके सर।
मैंने जो एक भेजा है ना उसको देखो ना, और पीएच जोशी भी रिफर करो, पैकविन भी रिफर करो, ओके उसमें सर। भी काफी सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स के ड्राइंग दिए है। ओके ओके सर। चलो, हाँ थैंक यू। और कुछ किसको डाउट?